Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today, being a Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on our direct numbers, 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. Please note down the direct numbers once again, 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र से शायद अभी कुछ संपर्क में बाधा है, हम उनसे अभी संपर्क फिर साधेंगे। शुरुआत में हेडलाइंस आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Foreign investors pull out nearly 6,500 crore rupees from the Indian capital market so far in the month of May, and the country's gold imports zoomed to $6.3 billion in the month of April. विदेशी निवेशकों ने मई में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों से लगभग 6,500 करोड़ रुपए की राशि बाहर निकाली और देश का सोने का आयात अप्रैल में भारी उछाल दर्ज करता हुआ $6.3 अरब पर जा पहुंचा। धीरेन्द्र जी से हमारा संपर्क फिर जुड़ गया है अर्जुन, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में धीरेन्द्र। टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं अर्जुन। Our top story continuing, profit booking. Foreign investors pull out 6,452 crore rupees from the Indian capital market so far in the month of May. Foreign portfolio investors or FPI withdrew 6,427 crore rupees from equities and 25 crore rupees from the debt markets, resulting in a net outflow of 6,452 crore rupees in the first fortnight of May. This comes after overseas investors pulled out 9,659 crore rupees in April. Before this, FPIs were the net buyers in the preceding 6 months. The overall investments in the domestic equity markets in 2020 now stand at 39,656 crore rupees. अर्जुन, जैसा आपने अभी पढ़ा स्टोरी में कि एफपीआईज जो 6 महीने तक नेट बायर्स थे भारतीय बाजार में, अप्रैल ऑनवर्ड्स वो नेट सेलर्स बन गए हैं। इनफैक्ट इक्विटी बाजारों से उन्होंने 6,427 करोड़ रुपीस मई में अभी तक निकाले हैं फर्स्ट फोर्टनाइट में, और अप्रैल में ये आंकड़ा 9,659 करोड़ रुपए का था। ये प्रॉफिट बुकिंग भी है और शायद कुछ अनसर्टेनिटी जो है बाजारों में और पूरे इकोनॉमिक सिचुएशन में पब्लिक हेल्थ पैंडेमिक को लेकर उसका भी असर है। Well, I'm sure our expert would also agree once he joins us, Dhirendra Kumar, that there has been a lot of hedging on the part of the foreign portfolio investors in the country, and they have been focusing particularly on sectoral stocks. And I'm sure Dhirendra Kumar would lend us his view on what sectoral and thematic funds would hold for mutual fund investors. Dhirendra Kumar, a warm welcome to you on Market Mantra. I think once again we are witnessing a technical issue with the transmission with our
expert Dhirendra Kumar on mutual fund and related issues. During this period, we'll discuss about mutual fund itself. आप जैसा भी कह रहे थे कि जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, आपने स्टोरी में भी पढ़ा कि FPIs नेट सेलर्स रहे, लेकिन रोचक बात यह है अर्जुन की जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, यानी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स जो हैं, वो इस पीरियड में एक तरह से एक पिलर ऑफ सपोर्ट उभर के आए हैं. वो पहले नेट सेलर्स थे, सो एकदम से रिवर्स हो गया है रोल. हम देख रहे हैं कि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं वो मोस्ट ऑफ द डेज नेट बायर्स रहे हैं बाजार में, और आशा करते हैं कि ये जो भरोसा है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टोरी भारत की, उसमें इन्वेस्टर्स का ये बना रहेगा और DII से स्ट्रेंथ मिलता रहेगा. Well, profit booking is being done by a foreign portfolio investors, Sonu, and because mutual funds are looking at this opportunity of a declining market, they're becoming net buyers, so they're short covering in the market and doing value investing, buying the same stock that the FPI had earlier invested in at a lower price, and that is what investment strategy is all about, and that's how they're able to promise a higher net asset value to their mutual fund unit holders. In fact, एक और रोचक बात उभर के आई है. पिछले वर्ष जब ये कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी और बाजारों में हमने बहुत भारी गिरावट भी देखी थी मार्च में, उसके बाद फिर रिकवर हुए बाजार. उस पीरियड में 1.42 लाख नए डीमैट अकाउंट खोले गए, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एक रिन्यूड इंटरेस्ट दिखाया डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में बाजारों में. सो ये एक तरह से एक और पिलर ऑफ सपोर्ट मिला बाजारों को, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, रिकवरी दिखाई पिछले वर्ष में. और अब हम देख रहे हैं कि 2021 में थोड़ा करेक्शन का मोड आ गया है. जैसा आप कह रहे थे कि प्रॉफिट बुकिंग, आफ्टर ऑल बाजारों में जो भी इन्वेस्टर उतरता है उसका अल्टीमेट जो गोल होता है वो होता है प्रॉफिट बनाना. Yes, of course, and during that period, many small investors, retail investors as we call them, had opened a demat account and a trading account with a bank which is linked to the stock market and the stock broking side of the business as well, and they were buying into the market. They had the option, once you open the dashboard, you can buy mutual fund units as well, along with direct purchase of equities in the market, and we've seen broad-based buying, both large cap, small cap and mid cap stocks, and that really kept the stock market afloat along with mutual fund support. Of course, they were the net sellers at that point in time. It was the FPIs who were the net buyers in that period, although they are net sellers right now. Profit booking. अर्जुन, इनफैक्ट जैसा हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा कहते आए हैं, सारे एक्सपर्ट्स जो भी हमसे बात करते हैं या हमारे कॉलर्स से बात करते हैं, उनका एक हमेशा ये एडवाइस रहती है कि जो भी इन्वेस्टर्स बाजार में उतरते हैं, अनलेस दे आर रियली कॉशियस और पूरा अगर वो स्टडी करके बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, तब ठीक है, तब देयर इज अ चांस कि दे विल नॉट बर्न देयर हैंड्स, एटलीस्ट दे विल नॉट लूज देयर प्रिंसिपल, बिकॉज ये बहुत जरूरी है. सो SIPs यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का हमेशा एक एडवाइस रहती है, जो कि एक कॉशियस वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कि आप एक SIP करिए म्यूचुअल फंड में, और हर महीने आप जो भी पैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं, 3,000, 5,000, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, ना कोई आप कम पैसा भी लगा सकते हैं. सो इसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जो एवरेज आउट कर देता है आपकी इन्वेस्टमेंट को, जब बाजार नीचे भी जाते हैं और जब ऊपर भी जाते हैं. Well, the principal advantage of SIPs is that you're able to hedge against market volatility, which is the propensity of the market price of a particular security to bounce up or down. And your mutual fund manager, who is actually looking after the portfolio, has the expertise and they have the artificial intelligence devices also to be able to track their profit booking in such a manner that they are able to they're able to sell when the price is at an upswing and not at a downswing. So that is what the SIP does for someone who is not tuned into the market 24/7 like the mutual fund manager, and you can do it on a monthly basis or a daily basis. So your mutual fund expert, I'm sure Dhirendra Kumar, once he joins us, would also agree that the monthly SIP is preferable. In fact, जब SIP का ये एक ब्यूटी है कि अगर बाजार नीचे भी जाता है, जिस दिन नीचे भी जाता है या जिस महीने नीचे भी जाता है, उसमें उतने ही पैसे में आप
आपके बिहाफ पे ज्यादा शेयर खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि शेयर्स की प्राइसेस डिप्रेस्ड होती हैं। सो आपको उसमें भी फायदा ही होता है, बिकॉज आपके जो शेयर की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, एंड जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो नेचुरली नेट एसेट वैल्यू इन रुपीज जो है वो आपकी बढ़ जाती है। सो अगर आप एक एडवेंचरस या कहें कि बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते, हमारा संपर्क धीरेन्द्र कुमार जी से फिर जुड़ गया है। धीरेन्द्र जी, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका जी। धीरेन्द्र, अभी हमने स्टोरी पढ़ी एफपीआई के जो इन्वेस्टमेंट हुई है, राधा कहें कि उन्होंने पैसा निकाला है मई में अब तक 6,452 करोड़ रुपीस इंडियन कैपिटल मार्केट से। ये कैसे देखते हैं आप इसको ब्रीफली? नहीं, ये कोई खास कोई बड़ी रकम नहीं है। ये $1 बिलियन से कम है, और इस तरह का पैसा निकलना या लगना बड़ा आम है। इसको दूसरी नजरिए से देखें तो जो कई महीनों से ऐसा हो रहा था कि डोमेस्टिक फंड पैसा निकाल रहे थे, वहां से पैसा बाजार में आना शुरू हो गया है। अब वहां पे इन्फ्लोज पॉजिटिव है। Let's join our first caller of the evening. We have Kiran Naik from Mumbai. A warm welcome to you on the program. Kiran, please ask your question to the expert. Yeah, thank you for giving me an opportunity. So I have a question regarding fund of funds. फंड ऑफ फंड्स में डायरेक्ट में अपन इन्वेस्ट करेंगे एज अ डायरेक्ट इन्वेस्टर, सो मुझे 1.5 एक्सपेंस रेशियो आएगा। तो जो फंड्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसका भी 1.5, तो टोटल 3% एक्सपेंस रेशियो लगेगा मुझे कि 1.5 ओनली? नहीं, फंड ऑफ फंड के लिए जो एक्सपेंस का जो फ्रेमवर्क है उसमें सेबी ने ये कहा है कि जो अंडरलाइंग फंड है और ये फंड है, दोनों मिला के 2.5% से ज्यादा नहीं हो सकता, या कुछ इस तरह का नियम है। तो दोनों एक तो फंड को डायरेक्ट प्लान में लगाना होता है, और फंड ऑफ फंड का एक्सपेंसेस रिलेटिवली कम होता है, और खासकर मैंने देखा है कि 1% से कमी आमतौर पे है। चलते हैं अगले कॉलर की ओर। गुरुग्राम से एस.टी. खन्ना है हमारे साथ। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए मिस्टर खन्ना। मेरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में अगर जी, आर यू एबल टू हियर मी? यस वेरी मच। हाँ जी, बोलिए मिस्टर खन्ना। Mr. Khanna, you're online. Please ask your question. I'm afraid you've lost our caller there, but I'm sure he will call back, Mr. Khanna from Gurgaon. In the meantime, Dhirendra, Sonu was talking about the rupee cost averaging, which is the advantage really of investing in mutual funds. Could you explain to us what that really means, that concept itself? It's actually not a huge concept. It's a recurring deposit, which people are used to. And the big advantage is that, in the market, there is always, a state of either exuberance or panic. Market is never in a state of, stable state of, it will cause anxiety. Either it looks very expensive, or it looks very cheap and very scary because it is on a free fall. Given this situation, that is the character of the market, how do you get into it? How do you make it road? And so rupee cost averaging. And also, there is another thing that we earn and get paid every month. We pay all our asset acquisition is paid in equated monthly installments. Then why not save every month? So it just fits in with our income cycle. So this is what SIP is. That is what rupee cost averaging is. If you are investing a constant amount of rupee money every month, then you are just averaging over a period of time, and that many people think that it is some magic will happen. No, it is just an anxiety management tool for you. रिंकी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं बलरामपुर से। आपका स्वागत है, सवाल पूछें। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। अर्जुन सर को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। और एक्सपर्ट सर को, सर मैम कोई भी हो, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे म्यूचुअल फंड, अगर कोई महिला अपने बचत के माध्यम से किसी फील्ड में अगर ये मार्जिन वो निवेश करना चाहती, वो सोचती कि हम करें, तो पहले मैम उसे करने के लिए किसी फील्ड में निवेश, तो उसे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके? इस पे थोड़ा अपना राय दीजिए। धन्यवाद। एक तो क्या देखें कि वो एक रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड हो, सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड हो, और उसमें आप पैसा लगा रहे हैं। और खासकर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आमतौर पे कोई भी म्यूचुअल फंड नगद पैसा आपसे नहीं लेता है आपको, और इसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है, आपका KYC किया जाता है। तो आधार कार्ड अगर हो, और
पैन कार्ड हो तो आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, धोखाधड़ी के अलावा एक दूसरे कारण से निवेशकों को बड़ी निराशा होती है कि वो जो अनुपयुक्त फंड है, जो अप्रोप्रिएट फंड नहीं है, उसमें अपना पैसा लगा देते हैं। और कई बार निवेशक हाल फिलहाल जो फंड जिसका प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा है उसमें लोग पैसा लगाते हैं ये समझे बगैर कि उसके रिस्क क्या है। सवाल पूछिए, रिस्क समझिए, और सब उसके भी पहले एक जरूरी चीज ये है कि आप एक चीज जो कि केवल आप ही निर्धारित कर सकते हैं और वो कोई सलाहकार या कोई म्यूचुअल फंड निर्धारित नहीं कर सकता है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं उसकी कितने सालों तक आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बारीकी से इसका आकलन कर पाना आपके लिए भी संभव नहीं होगा, लेकिन आप इतना तो आप आकलन कर ही सकते हैं कि ये क्या आपका कुछ महीनों का पैसा है, ये क्या आपका कुछ साल का पैसा है, या क्या ये पैसा आपके कई सालों का पैसा है। और इसके आधार पे अपने निवेश का चुनाव करें। और इन चीजों के लिए, इस अवधि के लिए अलग अलग तरीके के फंड होते हैं। तो अगर आप ये 2-3 चीज अगर ध्यान रखें, और धोखाधड़ी तो अगर आप किसी को कैश नहीं देते हैं और देखें कि किसी म्यूचुअल फंड में ही आपका पैसा जा रहा है। एक म्यूचुअल फंड में एक सुरक्षित चीज क्या है कि म्यूचुअल फंड में पैसा कभी भी आपके द्वारा चेक से, बैंक अकाउंट से ही पैसा लिया जाता है, और कभी भी आपके म्यूचुअल फंड का जो रिडेम्पशन प्रोसीड है, जब भी उसको बेचा जाएगा तो वो किसी और को मिल ही नहीं सकता है। और दूसरा चीज इसमें एक और चेक है कि मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है, और धीरेन्द्र कुमार के चेक से किसी और के नाम से निवेश नहीं हो सकता है। तो अगर आप तो केवल मैं अपना चेक दे करके अपने बैंक से के जरिए केवल मैं अपने नाम पे निवेश कर सकता हूं। तो ये भी धोखाधड़ी की आशंका को, ये संभावना को कम करता है। Our next caller is Swapan from West Bengal. Swapan, a warm welcome to you on the program. Please ask your question. Thank you. Sir, I have 3 queries. First one is, when I sell a share or mutual fund units on 31st or 30th March, and the sales proceeds I receive in the next financial year, will the transaction be treated in that same year or the next year? It will be considered as that same year. The reason is that, there is a principle of accounting that it happens on an accrual basis. Even if you get, for example, if you, as it happens in any business, because the contract note or the transaction date of your transaction will be on that date itself. अगले कॉलर है ग्वालियर से मोहन कुमार। मोहन जी, सवाल पूछिए। मार्केट मंत्रा टीम और धीरेन्द्र सर को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। धन्यवाद आपका। धीरेन्द्र सर, मेरा सवाल है कि अभी हमारी देश की जीडीपी 203 लाख करोड़ की है और बीएससी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 210 लाख करोड़ रुपीज का है। तो इस कंटेस्ट में मेरा सवाल है कि सर मेरे सीट चल रही है, तो वो उस सीट में जो अमाउंट जा रहा है उसे जाने दे, और सपोज अगर जो 1 अप्रैल से हम एक प्रिंसिपल है कि जो अमाउंट को इंक्रीमेंट करना होता है उसे इंक्रीमेंट करे या न करे, तो ये मेरे क्वेश्चन से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के होराइजन से है सर। जी, थैंक यू सर। जी हाँ, इस तरह की चिंताएं बीच बीच में आपको आती रहेंगी, और इसकी चिंता छोड़िए, नहीं तो आप निवेश नहीं कर पाइएगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर, अगर आपको कई सालों तक इस पैसे की जरूरत नहीं है, तो क्या आप 4-5 साल 10 साल के भविष्य में भारत का भविष्य उज्जवल देखते हैं? क्या ये आपको लगता है कि स्पीड ब्रेकर है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं? तो इस बारे में सोचिए भी मत, बल्कि और जो आप सालाना अपना निवेश बढ़ाते हैं अप्रैल में, चूंकि अगर आपकी आमदनी बढ़ी है उस वजह से, तो जरूर बढ़ाइए। इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। अगर आप इसकी चिंता करेंगे तो मुझे लगता है कि बाजार की स्थिति को देख करके, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होती है जब हम निश्चिंत होकर बोल सकें कि ये बाजार बिल्कुल निश्चिंता से पैसा लगाने वाला है। जब बाजार बहुत सस्ता हो जाता है तब डर लगता है, क्योंकि बाजार उस समय लगता है कि और भी गिर सकता है, और बाकी समय जब बाजार चढ़ रहा होता है तो लगता है कि इतना महंगा हो गया कि यहाँ लगाने पे केवल नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और हो सकता है कि इसके बाद गिरावट भी हो। लेकिन अगर आप कई सालों की लगा रहे हैं, एक तो इसको गेस करना बड़ा मुश्किल है, और कई सालों के लिए लगा रहे हैं, निश्चिंता से लगाइए। Next caller is Ratnakar from Mumbai. A warm welcome to you on the program. Please ask your question, sir. रत्नाकर जी, एक रिक्वेस्ट है कि आप रेडियो की जो वॉल्यूम है उसे धीमी कर दें when you ask the question. Okay.
ओके सर, ओके जी, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा सवाल है कि म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग हो सकता है क्या, ये है। और दूसरा है कि मेरा SIP जो 2018 में चालू किया था वो मार्च में ELSS का खत्म हो गया, फिर भी अप्रैल और मई में SIP कट हो गया है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? SIP जो कट हो गया वो तो आपका इन्वेस्टमेंट ही होगा, और अगर आप चाहें कि अगर और उसके बाद से ये पैसा बढ़ा ही होगा, तो अगर आपको ये SIP नहीं करना था तो अपना पैसा निकाल सकते हैं। और दूसरा कि म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं, मुझे लगता है आमतौर पर किसी आम निवेशक को ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। और अगर ट्रेडिंग आप करते भी हैं तो बिल्कुल एक बाउंड्री बना के कि आप इतने रुपए का कर रहे हैं, ये आप रूल फॉलो करते हैं, और उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको और म्यूचुअल फंड में तो करना बहुत बड़ा खतरनाक है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में कुछ दिनों के लिए निवेश करते भी हैं तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इसमें आपका नुकसान ज्यादा हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं और खासकर इक्विटी फंड में, तो यहाँ पे एग्जिट लोड लगता है। और 1%। तो अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया और 2 दिन के बाद अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपका पैसा 1% या 2% ऐसे ही घट जाएगा। तो कुछ दिनों का और एक दिन लगा करके अगले दिन तो म्यूचुअल फंड आप निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जब पैसा लगाते हैं तो 2-3 दिन में आपको अलॉटमेंट होता है। फिर जब आप पैसा रिडीम करते हैं तब भी वो पैसा 2-3 दिन के बाद आपको मिलता है। तो वो जो आप बाजार में देखते हैं कि लोग सुबह खरीदते हैं, शाम को बेचते हैं, या कुछ स्ट्रैटेजी लगाते हैं, या फ्यूचर एंड ऑप्शंस जहाँ पे कि आप 10 रुपए लगा करके 100 रुपए का सौदा आप कर पाते हैं, और उस पे जो मुनाफा या नुकसान होता है वो उसके आप भागीदार होते हैं, या वो आप उस पे आपका हक होता है, तो वो चीज करना म्यूचुअल फंड में संभव नहीं है। अगले कॉलर है गाजियाबाद से आशु जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। हेलो। यस जी। Very good evening to Market Mantra team. I just wanted to know about recently launched Mire Asset NYSE FANG Plus Fund, and how does it differ from Motilal Nasdaq 100? My friend told me that you will not get an advantage of tax-free if the income or if you have a profit range within 1 lakh in 1 year. If you invest in Mire NYSE FANG Plus. Could you explain more on this new fund and how does it differ from Motilal Nasdaq 100? So that I'm confused which way to go. All right. Thank you, please. As you know that any ETF is mounted on an index. Motilal Oswal Nasdaq 100 is mounted, replicates, it tracks, invest in the same companies in the same proportion as the index, as the Nasdaq 100 stocks. So the Nasdaq 100 is made up of 100 stocks listed on the Nasdaq, and Nasdaq is an exchange where which is dominated by the technology companies, and most of the new companies in the US they get listed there. So that is that. Then this FANG Plus is a new thing, which is New York Stock Exchange FANG Plus Index is made up of 10 index. The index is made up of 10 stocks. These 10 stocks are, FANG is, the Facebook, Alphabet, Netflix, and Google. Alphabet used to be Google, so it's something else. But now this FANG Plus is made up of 10 stocks. It's an index of 10 stocks, and this gets rebased, or it gets rebalanced every quarter. And this is made up of 2 more stocks beyond the stock listed in US, which is Alibaba, two non-American stocks, which is Alibaba and Baidu, which are leading high growth companies. And the state of taxation of any foreign fund is that it is treated as a capital effect. You have to hold it for 3 years, and all the gains will be taxed after adjusting for the indexation. And any gain before the 3 year will be added to your income. Next caller is Gaurav from Ghaziabad. Gaurav, a warm welcome to you on the program. Please ask your question. Good afternoon, Market Mantra team. In current scenario, would you advocate still flexi cap fund in comparison to
a multi-asset or a thematic fund of fund, or a balance advantage in current scenario when the commodity prices are going to rise and FlexiCap doesn't have option or a possibility to invest in gold or other commodities. So would you still advocate to invest for a long-term investor to be in FlexiCap, or you can consider multi-asset or thematic fund of fund? Thank you. I would say that, thematic funds are generally avoidable unless you are very convinced of some theme and you don't have any other investment vehicle. The reason why we invest in a mutual fund is that it's a quick vehicle, quick way to diversify. And all these vehicles are suited. What you said was balanced advantage, what you said was multi-cap. I think these are meant for different investors. Very scared investors, less experienced investors should invest in the balanced advantage fund. Experienced investor who can withstand the ups and downs of the market should invest in a multi-cap fund, simply because, you are quickly able to diversify. If you think that, you need to, and this whole theory that, commodity prices are going up or they'll come down or something else will happen. Market is made up, all these things are cyclical. The cycle changes and you really don't have a control on that. And sometimes these cycles can be longer. And different segments of the market, different part of the market, different commodity cycle, all these things will clash and you will have lots to worry if you start worrying. But I think, for the low maintenance, if you want to have a strategy, low maintenance strategy, balanced advantage, FlexiCap, they really do the job for you. अगले कॉलर है अजीत कुमार यूपी से हमें कॉल कर रहे हैं. उनसे बात करने से पहले अजीत कुमार जी, अपना जो रेडियो सेट है उसकी वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए. रेडियो बहुत एको आ रहा है. हेलो जी अजीत जी, अपना सवाल पूछें. जी नमस्कार. नमस्कार जी, मेरा ये सवाल है, जैसे म्यूचुअल फंड मतलब होता क्या है सर, किस प्रकार की जानकारी? जी, म्यूचुअल फंड एक निवेश का व्हीकल है और आप निश्चित आमदनी के लिए आपके पास ढेर सारे विकल्प हैं कि आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट खोल के डाल सकते हैं. बाजार की भागीदारी, किसी कंपनी की भागीदारी या किसी कंपनी में सीधा पैसा उधार देने का जरिया है, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज किया जाता है और उनके सौदे उनमें ट्रेड होता है, उनमें लगाने का एक जरिया है. क्योंकि अधिकतर निवेशक ये एक आसान जरिया है. थोड़ी रकम से किसी की निगरानी में आपका पैसा लगा रहता है और काफी आसानी से आप निकाल पाते हैं और लगा पाते हैं. अगले कॉलर भीम सिंह है. उनसे बात करने से पहले बता दें कि देश में सोने का आयात अप्रैल में भारी उछाल दर्ज करता हुआ 6.3 अरब डॉलर पर जा पहुंचा, लेकिन इसी दौरान चांदी का आयात 88.5% लुढ़ककर 11.9 मिलियन डॉलर के करीब रहा. भीम सिंह जी, आपका स्वागत है. जल्दी से सवाल पूछिए. प्लीज अपना रेडियो सेट का वॉल्यूम हल्का करते हैं. आप स्टूडियो में रहेंगे अभी या जी जल्दी पूछिए. सवाल पूछिए. This is Jitendra Singh from New Delhi. The question is, I just want to have your take on the following fund, which I have invested for more than a decade now. HDFC Equity Fund 1, second HDFC Top 200, third Franklin Flexi, which used to be Franklin Prima Plus, and two more. Yeah, and two more. One is ICICI Discovery and one L&T Value Fund. Thank you. You have, excellent set of funds, and these funds were undergoing, were in a rough patch. They were having a difficult time not very long back, and most of these funds have actually made a great comeback. These funds are a combination of, growth and value stocks, and the value component of the portfolio, these portfolios were a big drag. And I'm hopeful, you would have seen that, in the last 4 to 5 months, these funds have actually, raised ahead of the growth strategy that we have seen. So I would say that you have an excellent set of funds. Don't disturb it. And if you are carrying on with your SIP, don't stop either. धीरेन्द्र जी, समय समाप्त हो रहा है तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए. धन्यवाद आपका. And before we close, a reminder of the headlines. Foreign investors pull out nearly 6,500 crore rupees from the Indian capital market so far in May. And country's gold imports zoomed to $6.3 billion in the month of April. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.